حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے والد سے منہ کو پھیر لیتا ہے، جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، وہ کبھی مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا، نہیں صدقہ بھی سید پر نہیں لگتا، عشر بھی نہیں لگتی، زکوٰۃ بھی نہیں لگتی اور خیرات بھی نہیں لگتی، نہیں سید پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہے کہ نبیوں کا جو ترکہ ہے، جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی وراثت ان کی اولاد کے لیے نہیں ہے، تو پھر سید کے لیے کیا ہے؟ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ سید مظہر حسین شاہ، سید اظہر حسین شاہ، سید اسرار حسین شاہ، سید یاسر حسین شاہ کے والد، اسلام آباد نیوز کے CEO سید نذر کاظمی، رائل فیوچر فاؤنڈیشن اسکول کے ڈائریکٹر سید اسرار بخاری کے سسر، جلیار شریف کی معروف شخصیت مرحوم سید نذر حسین شاہ کی دعائے چہلم کے موقع پر محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ معروف نعت خوانوں محمد زعفران، شاہد اقبال نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی۔ حضرت مولانا منظور احمد نقشبندی نے خصوصی خطاب فرمایا۔ دعائے چہلم کی تقریب میں پیر سید جعفر حسین شاہ گدی نشین آستانہ عالیہ جلیار شریف، معروف شخصیت چودھری راسب پکھڑال منہاس، اسسٹنٹ فنانس سیکرٹری FECHS جناح گارڈن کرنگ ٹاؤن راجہ شہزاد، رانا کارپوریشن کے آنر رانا عتیق، راجہ ظہور، راجہ عبدالعزیز، راجہ غلام مصطفیٰ، راجہ شاہد، راجہ زاہد سمیت علاقہ عمائدین، معززین اور مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمانوں کو لنگر دیا گیا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ مہتاب کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج بھی الٹا پھرتا ہے، جس وقت مدینے والے کی انگلی کے اشارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کول ہووے حق لا الہ الا اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، کدی غفلت چھوڑے آ، کدی غفلت چھوڑے آ، کدی رب وال گوڑا، کدی رب وال گوڑا موڑے آ، لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اج کوچ مسافر کر چلے، اج کوچ مسافر کر چلے، اج اپنے اصل وطن وے ول چلے، سینہ تے پہنا تے پایاں دا سل چلے، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، ہاں حامی سڈیا منا دے لال ہون گے، جدو دن حشر دے سوال ہون گے، ہاں حامی سڈیا منا دے لال ہون گے۔ ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں،
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਰੋ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੂੰ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੂੰ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਟਹਿ ਜਾਵਣ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵਣ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਟਹਿ ਜਾਵਣ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵਣ। ਲੋਕ ਪਰਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਰਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਮਰਨ ਤੇ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੇ ਟੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਪ ਮਰਨ ਤੇ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੇ ਟੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ नहीं। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, हम जनाजा उठाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि बस जनाजे की एक ही तरफ एक ही पाइंती को हम कंधा देते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा हक अदा हो गया है। जबकि आज हदीस सुनो, और मुजम औसत की ये हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जनाजे के साथ चला और चारों पाँव वाली साइड पर जो पांतियाँ हैं जहाँ पर उठाया जाता है, जो चारों साइड पर वो जनाजे को कंधा देता है, अल्लाह तबारक व ताला 40 बड़े गुनाहों को, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जनाब, ये मैयत के साथ चलने पर चलने वाले को ये सवाब मिलता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब बंदा आले रसूल में से, हुजूर की आल में से किसी के जनाजे को उठाए, मेरा अकीदा ये है, मैं किसी के अकीदे का जवाबदेह नहीं हूँ जनाब, मेरा अकीदा ये कहता है कि जिसके दिल के अंदर हुजूर की आल की मोहब्बत है और जब वो किसी के जनाजे को उठाए तो जनाब फिर 40 पर बात नहीं होती, क्योंकि जन्नत के सरदार तो हैं ही इन सैयदों के बाबा हैं न। जब जन्नत में जाओगे तो क्या जन्नत के सरदारान मौला इमाम हसन पाक, मौला इमाम हुसैन पाक क्या तुम्हारा इस्तकबाल नहीं करेंगे कि दुनिया में तुमने मेरी औलाद के साथ मोहब्बत की है, आओ आज कब्र में, आज जन्नत में
हम हसन हुसैन तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। जनाब ये सैयदों के जनाजे, क्योंकि खुसूसन मैं 2 दिन पहले आया दुआ करने के लिए, फातिहा के लिए, तो मुझे मेरे इलाके मानसेरा के एक सैयदजादे और इनके हैं रिश्तेदारों में से ही हैं, उनके साथ थोड़ी सी देर यहाँ बैठने का मौका मिला, तो यकीन माने कि उन्होंने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया ने। और वो ईमान ताज़ा क्या हुआ कि हुजूर ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जनाब मवद्दत का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नामी ग्रामी इन सैयदों से मोहब्बत करो ने, बल्कि उस सैयद ने मुझे ये बात समझाई है। वैसे एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा, जैसे उन्होंने मुझ पर सवाल किया, मैं आपसे सवाल करके जवाब भी मैं खुद दूँगा। सदका भी सैयद पर नहीं लगता, उशर भी नहीं लगती, ज़कात भी नहीं लगती और खैरात भी नहीं लगती ने, सैयद पर कुछ भी नहीं है। और फिर हुजूर ने फरमाया है कि नबियों का जो तरका है, जो छोड़ कर जा रहे हैं, उसकी वरासत उनकी औलाद के लिए नहीं है, तो फिर सैयद के लिए क्या है? जनाब सैयद के लिए ये है जो हम कमाते हैं उसमें से आधा हिस्सा सैयद का है न। और ये बात उस दिन मुझे समझ आई कि वाकई में अगर बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है, आज हमने सैयद से कितनी मोहब्बत की है। जनाब आज ये दौर ऐसा है, इस दौर में हमें बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद की इज़्ज़त व तकरीम करना होगी नहीं। और फिर मैं आगे चल कर के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आपकी समातों की नज़र ज़रूर करूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने बाप से, अपने वालिद से मुंह को फेर लेता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अपने वालिद से मुंह को फेर लेता है, जनाब हुज़ूर ने फरमाया है कि उसका खात्मा कुफर पर होगा नहीं, वो कभी मुसलमान होकर नहीं मर सकता नहीं। अगर आप पूछें कि इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, रब ने फरमाया लोगों मेरी इबादत करो, मेरी इबादत के बाद अगर कोई चीज़ तुम पर लाजिम है तो वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक सुने कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसका बाप उससे राज़ी हो गया तो गोया उसका रब भी उससे राज़ी हो जाएगा। बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है न, अगर बाप राज़ी नहीं तो फिर रब राज़ी नहीं है। और फिर आखिरी बात करूं क्योंकि दुआ का वक्त हो चुका है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा जुम्मा वाला दिन अपने वालिदैन दोनों फौतशुदा हैं या उनमें से कोई एक है, उनकी कब्र पर जाए, हाज़िरी दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके छोटे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसको फरमाबरदारों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। जनाब जो बाप मर जाए और जब आप कब्र पर पहुँचें, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस बाप के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा सकता है। तो दुनिया में वो बाप आपके लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं कर सकता, वो आपकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अच्छा ही फ़ैसला फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ कहा सुना है यहाँ पर, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना